256. Okay, so good evening, everyone. Today we will be discussing. We will continue our discussion on number series that we have left yesterday. So this is the first question in front of you, and you guys are saying that the answer will be 256. कैसे भाई? मुझे भी बता दो जरा. How the answer will be We will 256? multiply the May preceding digits Sir, we have to together. multiply all the previous terms. Multiply Yes, sir. the forward number. You have to multiply all the previous terms. तो क्या 16 into 4 into 2 into 2 into 256 is coming to be 65536? कैलकुलेट कर सकते हो? वैसे तो मुझे लग रहा है कि हाँ Yes, आएगा. sir. देखो इसमें Yes, करना sir. क्या है, देखो हाँ इसमें सर. करना क्या है. एक पहला लॉजिक जो यहाँ पे हमें ये मिलता है कि हम ऐड करके तो कुछ कर नहीं सकते. योर आंसर्स आर करेक्ट. वी कांट ऐड द नंबर्स एंड वी कैन गेट द आंसर. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन से तो काम चलने वाला नहीं है. या तो मुझे स्क्वायर के पास जाना पड़ेगा या तो मेरे को क्यूब के पास जाना पड़ेगा. तीसरा ऑप्शन ये बनता है कि सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक बार देखते जाओ भाई. तो स्क्वायर के पास अपन नहीं जा सकते क्योंकि 1 स्क्वायर इज नॉट 2, 2 क्यूब इज नॉट 2. तो अपन के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस विल बी द लॉजिक. दिस विल बी द लॉजिक. व्हाट इज द लॉजिक? 1 इंटू 2 किया तो मुझे 2 मिला. फिर 1 इंटू 2 किया तो वापस से मेरे को 2 मिला. देन व्हाट आई डिड इज 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2. Then 16 is equal to 1 into 2 into 4. Then 256 मुझे निकालना है. That is nothing but 1 into 2 into 4 multiplied by 16. Finally, I am getting 65536, which is equal to 1 into 2 into 4 into 16 into 256. That is equal to 65536. So this is how the question will be done. So not a big deal. Let us move to the next question. All right, this is the question in front of you. Fourth option is hidden. Chalo bhai. Take your time, solve the question, give me the answer so that we can move ahead. Sir, 50. 50. Yes, sir. 50. Okay, tell me the Answer logic. 53. Okay, tell Sir, me the logic difference is also. increasing by 4. The Yes, sir. difference, The difference is increasing by 4. the difference Yes, is sir. increasing by 4. ठीक है भाई. 8 minus 2, 8 minus 2 is equal to 6. Then I am having 18 minus 8 is equal to 10. Then I am having 32 minus 18 is equal to 14. Yes, the difference is increasing by 4. तो जो अगला नंबर होगा वो 18 ज्यादा होगा. That is 32 plus 18 is nothing but option number C, which is equal to 50. Let us move to the next question. Sir, I tried a different Sir, logic. हाँ बोलिए सर मैंने बोलिए. भी डिफरेंट चलिए सर मैं बताइए. बोलूं I just did that. एक 2 एक और करके बोलो. 8 है तो 2 4 जा 8 होता है और फिर 18 2 9 जा 18 2 6 जा 32 और यहाँ पर 4 और 9 मतलब 2 4 जा 2 9 जा 4 और 9 प्लस 5 हो रहा है 9 और 16 तो इसमें प्लस 7 हो रहा है तो नेक्स्ट वाला जो आएगा तो 16 प्लस 9 25 25 2 जा 50. ठीक है. ठीक है भाई. इन्होंने क्या किया देख लो. इनकी भी बात सुन लो. इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने बोला कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 एंड 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32. अच्छी बात है. यहाँ पे 4 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 5 है. यहाँ पे 9 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 है. तो 16 और जो अगला नंबर होगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 9. वेरी गुड. 16 plus 9 is equal to 25. So finally I will have 2 into 25 which is equal to 50. No problem. Very good. Now Shrey, your turn. आप बताइए. सर बोल दिया. सेम था. हाँ सर, Very 2n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया. वेरी गुड वेरी गुड. चलिए आगे चलते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. You have to tell the missing terms only.
does his logic and try to find if there is any loophole or not. Because I don't know, maybe the answer will be different also. The answer can be different also, but 99.99% the answer will not be different. 16 into 2 plus 22 किया तो आपको 54 मिल गया, बहुत खुशी की बात है. 54 into 3 plus 33 किया तो आपको 195 मिला, और अच्छी बात है. 195 into 4 plus 44 किया तो आपको 824 मिला. That is your one of your options. So yes, that is most likely it is correct. देखो, इस क्वेश्चन का हिंट आपको यहाँ से मिल सकता था. आप लोगों ने, कई लोगों ने ढूंढा भी होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 195 into 4 की बात तो हो ही रही होगी, क्योंकि जो नंबर्स हैं 780 हो गया, 802 हो गया, 816 हो गया, 824 हो गया. these numbers are about 4 times of 195, 4 times of 195 plus something, 4 times of 195 plus something यहाँ पे हो रहा है. तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो भी आप, हो सकता है आप यहाँ पे एक ऑप्शन 780 मार्क कर सकते थे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो. दैट इज, नाउ अगेन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग हियर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग हियर. सो यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ज्यादा टाइम मत देना. हार्डली 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड से ज्यादा टाइम मत लगाना किसी भी सवाल में. उस टाइम को सेव करके रखना. आगे जब अपन पजल वाले क्वेश्चन करेंगे वहां पे उस टाइम को यूज करना. दैट विल बी अ बेटर वे ऑफ यूटिलाइजेशन, बिकॉज इवन इफ यू आर स्पेंडिंग 2 minutes हियर, 2 minutes हियर, देन ऑल्सो यू विल गेट 1 mark. बट अगर पजल वाले क्वेश्चन में आपने 5 मिनट लगाया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे. तो इस टाइम को सेव करके वहां पे लगाना. एंड ओवरऑल देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर तुक्काबाजी कर सकते हो. इफ यू आर गेटिंग द लॉजिक देन इट्स फाइन, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग द लॉजिक इन ए स्पेसिफाइड टाइम देन मूव अहेड. अगर मैं आप लोगों को टाइम दे दूं कि भाई आपके पास पूरा का पूरा दिन है सवाल को करने के लिए, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिससे सवाल नहीं होंगे. सारे क्वेश्चन आसान है, सब कर लोगे यार. लेकिन पॉइंट है टाइम लिमिट में करना. चलो ट्राई दिस क्वेश्चन. वेरी नाइस. सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. अगर आप इस नंबर को डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट आउट. नहीं सॉल्व होगा भाई, सीधी सी बात है. क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कुछ और कहानी बोल रहे हैं, आपके पास जो नंबर्स हैं वो कुछ और कहानी बोल रहे हैं. आप मल्टीप्लाई करोगे, आप 14 और 316 में आप जाओगे तो आप 14 इंटू 20 प्लस 36 कर सकते हो, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा. अगेन 316 इज नॉट multiplied by 20, so multiplication is also failing here. So these are the questions that have some of the typical logics that you should note somewhere. ये जो क्वेश्चंस हैं इनके लॉजिक इतने सिमिलर नहीं है, इतने सिंपल नहीं है. अब देखो जरा ध्यान से, ये जो 14 है, everybody will read it as 14, but I am reading it as 1,4, 1 अलग 4 अलग. देन ये जो 316 है, व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे, एंड दिस इज नथिंग बट 2 स्क्वायर. यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 16 आया, 16 इज नथिंग बट 4 स्क्वायर. यहाँ पे आप 16 को 4 स्क्वायर भी बोल सकते हो, बट उसके लिए फिर आगे आपके पास नेक्स्ट में आपके पास 256 होना चाहिए था. नेक्स्ट is 536. So this 536 you can read as 5 and here you are having 6 square. इसका मतलब ये हुआ कि पहला नंबर और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर. consecutive numbers are being written but they are being written in a different form. पहले आपने नंबर लिखा, उसके बाद फिर आपने दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर लिख दिया. नेक्स्ट जो है वो देख लो, अगर यहाँ पे भी वैलिड होता है तो ठीक है. 764, 7 और उसके बाद 8 स्क्वायर. यहाँ पे क्या होगा, 900, 9100 will be the answer. 9 back comma 10 square. So this will be your question. This will be your solution of the question. अभी इसको इरेज करके I will just show you the solution. This is the solution of the question. 2 4 square and like this. The way we have done that is correct only. So we don't have to worry about it. Next. Oh, 8, 11, 15, 22.
चलिए इसमें बताइए। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखने चलो लेट मी आस्क योर फ्रेंड ओनली जील, हाउ यू अप्लाइड, हाउ यू ट्राइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो जील, आपने जब इस क्वेश्चन को देखा तो आपके दिमाग में जो पहली चीज आई वो क्या आई, बताइए। चलिए। Sir, I was trying to find some relation in the alternate series like 8, 15 and sir, and when I saw that 11 and 22, so I found that I think there is some alternate series going on over here. देखो alternate series is will be your one of the last methods that you will be trying, right? I agree with your point that you can try the alternate series here, but it will be one of the last methods that you will be trying. First of all, what you should see here, what you should note here is 8 है 11 है, difference between 8 and 11 is 3, difference between 11 and 15 is 4, difference between 15 and 22 is 7. इसका मतलब क्या हो रहा है, जो difference होता जा रहा है वो add होता जा रहा है. Difference between 15 and 22 is 7, difference between 22 and 31 is 11. 22 and 31 के बीच का जो डिफरेंस है वो 11 है, which is nothing but 7 plus 4. Difference between 33 and 51 is 18, which is nothing but 7 plus 11. Now the difference between 51 and the next number will be 11 plus 9, 11 plus 18, which is equal to 29. So my next number will be 51 plus 11 plus 18, which is equal to 80. That will be your answer. खत्म. That will be your answer. और उसके बाद जो अगला नंबर है वो भी चेक कर लो भाई, वो भी चेक कर लो. तो इन दोनों 127 और 80 के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए that should be 18 plus 18 plus ये कितना हो गया 47. हाँ, whatever it is that should be this. अब यहाँ पे देखो 51 then 80 and then 127. यहाँ पे कितना डिफरेंस था, यहाँ पे the difference was 18 and here the difference was 29. So between 80 and the next number the difference should be 29 plus 18, which is equal to 47. अब देख लो भाई 80 plus 47 करोगे तो the result will be 127. So your logic is absolutely correct. So your logic is absolutely correct. The alternate series method, the other methods that we have discussed in the previous two questions, that are the last of one of the last resorts. उसको अपन बाद में ट्राई करेंगे, पहले इन चीजों को ट्राई करो. ओके चलो. अच्छा इसका सॉल्यूशन देख लो भाई. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट. 2, 3, 6, 18, question mark 1944. Oh my God. सीधे इतना ज्यादा इंक्रीज. So 108. सर सी सर हो गया C 108 C option सर हो गया. 108. Yes, sir. C C108. C 108 108. वेरी गुड वेरी गुड. Yes, चलो sir. बता दो भाई C108 कैसे आया. Sir, it is 2 into 3, Sir, 6, 6 yes, into sir, 3, 2 into 3, 18 into 6, 6, So previous 108. numbers के सारे multiplication. ठीक है, तो फिर अगर ऐसी बात है मैं क्या कर सकता हूँ. मैं आप लोगों की बात को कभी मना करता हूँ क्या. आई एम सच ए कूल टीचर. हाँ, जो आप लोग बोलते हो मैं वो आपकी बात को मान लेता हूँ. देखो भाई 2 into 3 किया तो 6 मिला, 6 into 3 किया तो 18 मिला, 18 into 6 किया तो 108 मिला, और फिर फाइनली 108 into 18 कर दो तो ये आपको कितना मिलेगा 1800 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 1944. नाउ यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू बी डबल श्योर तो मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर. फाइनली योर आंसर इज 108. ऑप्शन नंबर सी 108 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट. 7, 1955, 163. Interesting.
सर डी ऑप्शन 487. 487. अच्छा. ओके, एनीबॉडी एल्स? आपका दोस्त बोल रहा है 487. सर 1 मिनट. 1 मिनट. लो भाई, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ और बताओ. आप बोलोगे 1 मिनट वेट कर लो तो मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ? यू नो आई एम सच ए कूल टीचर. सर. क्या? यस सर 487. 487. कोई बीच में कुछ बोल रहा था? सर मैं बोल रहा हूँ. हाँ, क्या क्या बेटा, क्या बताया आप, क्या बोला आपने? सर मिल गया आंसर 487. 487. ओके, एवरीबॉडी इज गेटिंग आंसर एज 487. तो देखो, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं आपकी बात को मना तो करूंगा नहीं. इट विल बी 487 ओनली. अब कैसे आएगा सर? 7 इंटू 3 माइनस, देखो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है, ये चाहो तो आप लोग देख सकते हो. मुझे ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है, बट फिर भी आई राइट इट बिकॉज ऑफ 7 इंटू 3 माइनस 2 किया तो 19 मिला. सर 19 इंटू 3 माइनस 2 किया तो मेरे को 55 मिला. 55 इंटू 3 माइनस 2 किया तो मेरे को 163 मिला. 163 इंटू 3 माइनस 2 किया तो मुझे 487 मिला. देखो, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा हिंट जो मुझे मिलता है वो मुझे इस तरीके से मिलता है, अगर मुझे टेबल्स याद हैं तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मोर क्विकली, जैसा कि आप लोगों ने किया. जिन लोगों को टेबल याद है उन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन खत्म होने के साथ ही दे दिया था. और दूसरी चीज आपको ये, हाँ बोलिए बेटा. मेरा दूसरा लॉजिक है. बताएं बताएं बताएं. 7 और 9, मतलब 7 + 12 19 होता है. 19 + 36 55 और 55 + 108 163. तो 12 3s are 36 और 12 9s are 108. तो 3 3s are 9 और 9 3s are 27. तो 12 into 27 324 होता है. 163 और 324 487. एक बार फिर से बताओ. रुक जाओ यार, इनकी बात सुनने दो. हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बताओ. 7 और 19 में 12 का डिफरेंस है. 7 + 12 is equal to 19 and 19 + 36 is equal to 55 and 55 + 108 is equal to what will be it? 163. Okay, अब आप बोलो. Now can I modify your logic little bit? थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं. देखो, 12 3s आपने किया 36. आप जो बोल रहे थे कुछ मल्टीप्लाइड बाय 27, that seems to me little bit complicated. पहले ये बताओ. 36 3s are 108 है. 36 3s are 108. 108 3s will be equal to 324. 163 में जब आप 324 ऐड करोगे तो आर यू गेटिंग 487? यस सर. यस सर. मतलब वही है, वही है जो आपने बोला, वही चीज है, बट वो थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था मल्टीप्लाइड बाय 27 करके, इसलिए मैंने आपके लॉजिक को थोड़ा सा मॉडिफाई किया. दैट्स इट. यहाँ से देखो, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड वे ऑफ थिंकिंग. इन्होंने क्या किया, 7 + 12 किया, 19 मिला, बहुत अच्छी बात है. 19 + 36 किया, इनको 55 मिला. 12 और 36 में एक रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है, जैसे हमारे वैज्ञानिकों को आज से 10 दिन पहले एक साइक्लोन बनता हुआ दिख रहा था. फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद, 5 दिन बाद उन्हें एक और रिलेशनशिप मिला. अगले स्टेप में जैसे इनको एक और रिलेशनशिप मिला कि 55 + 108 = 163. नाउ इनके दिमाग की बिजली कड़की. इन्होंने बोला कि भाई यहाँ तो रिलेशनशिप बन रहा है. द डिफरेंस इज इन ए प्रोपोर्शन. 12 into 3, 36 into 3, अगला क्या होगा, 108 into 3. खत्म कहानी, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, चलिए ट्राई दिस. 9 49. किसी का और कुछ आंसर तो नहीं आ रहा है? किसी का और कुछ आंसर तो नहीं आ रहा है? नहीं, रुक जाओ. तुम लोगों ने आंसर बता दिया, एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा. आंसर तुम लोगों ने बता दिया, ठीक है, अच्छी बात है. भाई यहाँ पे देखो, जब मैंने इस सीरीज को देखा 1 9 25
1925 अच्छी बात है, 246 बहुत खुशी की बात है. तो बेसिकली आई एम हैविंग द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स एंड then first series is the square of odd numbers and the second series is the even numbers are being written. तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है 1, 9, then 25, then 49. मेरा आंसर आ चुका है. लेकिन इसके बाद भी देख लो भाई यहाँ पे क्या होगा 2, then I am having 4, then I am having 6. So इस तरीके से मेरा काम बन जाएगा. तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा 49 will be my answer. I hope you guys have understood what I want to say. Now let us move to the next question. चलिए, ये भी क्वेश्चन आसान सा है. Sir, 271. 271 will be Yes, the sir. answer. सर जो Multiplied नंबर है by उसका 2 डबल प्लस 1. multiplied by 2 plus 1 कर दीजिए तो 271 will be the answer. I'm not going to explain this. I'm going to move ahead. चलिए next. अब बताओ जरा. अब बताओ जरा. Sudden. Done. Okay. Okay. Chalo, tell me how you have done. Yes, sir, done. Very good. Wait, सुनय wait. 3 लोगों ने बोला डन. एक तो सुनय ने बोला, एक शायद वंश ने बोला होगा. वंश, आपने बोला क्या? यस सर, हो गया. चलो वंश आप बताओ. I will ask from you. Sir, in this sequence, I took the numbers 8, 16, question mark, 14, 6, 12, 5 and 10. So 8, here it is 1 मिनट. प्रॉब्लम है. आपने बोला 8, 16 क्वेश्चन मार्क. आप इसको नहीं ले सकते हो बेटा. आप 8, 16, 7, 6, 12, 5 को ले सकते हो. यू कांट टेक व्हाट ही सेइंग कि सर मैंने लिया 8, 16 क्वेश्चन मार्क देन 14. ऐसे ही बोल रहे हो ना आप? यस सर, फिर 6 लिया, फिर 12 लिया, फिर नहीं बेटा, प्रॉब्लम है. व्हाई प्रॉब्लम इज देयर? क्योंकि आपकी सीरीज कॉन्जिक्यूटिव हो सकती है. 8, 16 के बाद अगला टर्म आप 7 लोगे. दैट इज अ प्रॉब्लम. चलो श्रेय आप बताओ. सर इसमें 3 की सीरीज चल रही है सर. तो 8 क्वेश्चन मार्क 6 फिर 5, तो 8 के बाद 7 ही आ सकता है. 8, 7, 6, 5. ओके, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 3 सीरीज चल रही हैं. देख लो भाई. 8 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 6 कॉमा 5. अच्छा, उसके बाद 24 वाली सीरीज भी बता दो. नहीं सर, 16, 14, 12, 10 वो वाली चल रही है. अरे तो 14 ये भी तो बताओ. 24 के बाद 20 एक और सीरीज सर वो नहीं मिली. वो कौन सी सीरीज है? अच्छा, दूसरी मिल रही है है सर. वो एक सीरीज 24, 7, 18. ये कौन सी सीरीज है भाई? सीरीज. ये कौन सी सीरीज है भाई? बताइए सर. मैं अपना कुछ अलग लॉजिक बताऊं? हाँ बताइए. 8, 24, 16. तो 8 3 24, 8 2 16. और 6, 18 और 12. तो 6 3 18 और 6 2 12. और 5, हाँ, तो 5 2 10 और उसके पहले एक नंबर 5 है. और 7 2 14. उससे पहले मुझे लगता है 7 होगा. 7 2 14 उससे पहले मुझे लगता है 7 होगा. तो ठीक भी लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक भी लग सकता है. क्यों ठीक लग सकता है? सर वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है. सर ये 24 और 7 वाली सीरीज मिल गई सर.
अच्छा बताओ 24 और 7 वाली सीरीज बताओ। सर उसमें 24 पहले 24 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 7। अरे बाप रे, 7 हाँ इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 18। हाँ 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 5। तो फिर नेक्स्ट वापस अभी दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन आगे हो सकता है 5 इंटू 2 मतलब 10, मतलब आगे 14 होगा वापस ऐसे। सर मतलब ओके माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस 4 वो वाली सीरीज चल रही है। ओके, बट आई थिंक दिस इज मोर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। देखो आपके फ्रेंड ने जो अभी बोला उससे आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि अगेन सी हियर देर आर टू सीरीज विच आर गोइंग, देर आर टू सीरीज विच आर गोइंग। एक तो है 8, 24, 16, उसके बाद जो बीच के नंबर्स हैं 3 उनको हटा दो फिलहाल के लिए। नेक्स्ट इज 6, 18, 12। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाइड बाई 3 करो और सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाइड बाई 2 करो। यहाँ पे भी वही काम हुआ, फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाइड बाई 3 करो, सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई बाई 2 करो। अब जरा इस सीरीज पे आओ, क्वेश्चन मार्क 7, 14 एंड 5, 5, 10। अगर मैं 5, 5, 10 की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर मैं क्वेश्चन मार्क 7 और 14 की बात करता हूं तो दिस सर यहाँ मल्टीप्लाइड वैसे भी बाई ले 1। सकते हैं ना, 5 + 5 = 10 हो जाएगा, तो नहीं इधर बेटा, 7 तो + 5 7। + 5 10 होगा। हाँ ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आप कर सकते हो। ये काम आप ऊपर वाली में सीरीज में भी कर सकते थे कि 6, 8 + 8 16, 16 + 8 24। आप ये कह सकते हो कि द नंबर्स आर बीइंग इंक्रीजिंग बाई दिस 8। पहले में 8 से इंक्रीज हुआ, फिर थर्ड में 6 से इंक्रीज हुआ। सो इन माय ओपिनियन द करेक्ट आंसर शुड बी 7। लेट अस सी द आंसर, let us see the answer. First set has middle term as the sum of the terms on the left and right, the same thing that we did. And the second set has middle term as the difference and so on, the same thing that we have done. So the correct answer of this question will be 7 only. Shrey, why I am not going with your logic? Because that logic seems to be very complicated. आपने जो 24, 7 और ये 24, 7 और उसके बाद कौन सा आया था, 5 आया था शायद आपका नंबर, राइट? आपने जो लॉजिक दिया वो लॉजिक 24, 7, 18 और 5। 24, 7, 18 and 5, ठीक है। that with this also, with that also you are getting your answer, but why I won't go with that? Because the point is it seems to be very complicated. See, try to keep your logics as simple as possible. कुछ नहीं समझ में आएगा फिर तो complicated होगा ही, लेकिन जब तक चीजें समझ में आ रही हैं तब तक उसको जितना सिंपल रख सको उतना सिंपल रखो, जितना सिंपल रख सको उतना सिंपल रखो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। it will become a problematic case for you only. So try to keep the things as simple as possible. Okay, next question. Last question of the day. Please be little bit quick in solving this question. 2, 12, 36, 80, 150. हो गया? सर आंसर आ गया सी। आंसर आया सी। ओके, टेल मी हाउ यू गॉट द आंसर सी। 2 + 10 12 होता है, और 12 + 24 36, ऐसे ऐसे करके 10 24 44 और 70 आएगा। उसके बाद 10 और 24 में का डिफरेंस 14 है का डिफरेंस 14। है। उसके बाद 24 और 44 का में 20, और 44 और 70 में 26। तो इन सब में +6 + 6 हो रहा है, तो +6 26 + +6 6 32,
और 70 प्लस 32 102 एंड 150 प्लस 102 इज 152. ठीक है. I don't सर have हम any. दूसरा लॉजिक नहीं लगा सकते? बताओ, लगाओ. सर हाँ यही था सर, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब वाला. ठीक है. देखो आपकी फ्रेंड ने जो लॉजिक लगाया डेट इज इक्वली गुड. इन्होंने क्या बोला कि सर 2 और 12 के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है, 12 और 36 के बीच का जो डिफरेंस है 24 है, उसके बाद का जो डिफरेंस है 44 है और उसके बाद का जो डिफरेंस है 70 है. यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आता है. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 14 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सर डेट इज 26. समझ में आ गया मेरे को. अब जो अगला नंबर होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, द नेक्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू 150 प्लस 70 प्लस 26 प्लस 6. द नेक्स्ट नंबर विल बी दिस, that is equal to 252. The next number will be this. नहीं कुछ गड़बड़ की क्या यहाँ पे? हाँ नहीं कोई गड़बड़ नहीं किया. The next number will be this, which is equal to 252. That is one of the logic. Very good, nice. I really appreciate this because इतने लेवल तक सोचना, that is also a big thing. I really appreciate your thinking. The another method is this number is nothing but 1 square plus 1 cube. That's it. Very good. 12 can be written as 2 square plus 3 cube. 36 can be written as 3 square plus 3 cube. 80 can be written as 4 square. वापस समझेगा क्या बोल रहे हो बेटा? पहला वाला मेथड देखो, यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है, that difference is in a series. 10 पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 24 है, फिर 44 है, फिर 70 है. नाउ अगेन इन दोनों नंबर डिफरेंस का जो डिफरेंस है that is 14 20 26, that the difference of the difference is increasing by 6. So जो next वाला नंबर होगा 150 के बाद वाला जो नंबर होगा that will be 70 plus this difference 26 plus this difference between the two numbers, which is equal to 6, which is equal to 70 plus 32, that is 70 plus 102, which is equal to 70 plus 32, which is equal to 102. 150 plus 102 will be 252. So this is how the questions are to be solved. नेक्स्ट टर्न में काम करेंगे, पहले आगे का पढ़ेंगे, फिर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइम परमिट्स. सो टिल देन आई विल टेक योर लीव.